हम लोग लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे तो वी स्पोक अ लॉट अबाउट स्टफ व्हिच वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आज हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या हीलिंग बहुत एक वू कॉन्सेप्ट है, या पहले तो हम ये करें कि हील क्या हम सब कर सकते हैं? एनीवन हु इज वाचिंग यू राइट नाउ, इज हीलिंग एन अचीवेबल गोल? इट रियली इज, इट डिपेंड्स कि आपने क्या डेफिनेशन अटैच किया उसके साथ, आप क्या हीलिंग को खुद से समझते हैं. Of course, And I absolutely. feel that sometimes till today we are thinking about healing as something external. जब वो situation बदले, जब वो इंसान बदले, जब वो anything outcome based, अगर वो healing होता है, that becomes a little confusing because the power and the control you have inside of you gets dismissed. अच्छा, वैसे सदफ हम लोग हमेशा ये भी देखते हैं कि यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड द वर्ड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा. आई वाज टेलिंग पीपल कि स्ट्रेस से एक बैकपैक है जो आप लेके घूम रहे हैं, और जब वो बहुत भारी हो जाता है, जब आप कैरी नहीं कर सकते, तो वो एक ट्रॉमा बन जाता है. तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन लोगों को कि स्ट्रेस और ट्रॉमा होता क्या, इसमें क्या डिस्टिंग्विशमेंट, क्या अलग फ़र्क क्या है? You gave such a beautiful example right there कि stress and trauma हमने जैसे equate करते हैं with वजन and also where it's taking you. They are actually more internal experiences of stress, biological experience. अंदर से शुरू होता है. Okay. Your body is, stress response is about activating energy. अच्छा. For taking action. अच्छा. Say, and we equate it to ये काम stressful है. That means जो जितनी energy produce हो रही है, am I able to use that energy reserve to take action? Yeah, just anxious. Right. Or you're just getting anxious, right? And that's a state, a symptom of being in the stress response. और आजकल तो देखें पाकिस्तानी ऑडियंस कैन रियली रिलेट विद दिस, बिकॉज हमें इन्फ्लेशन का स्ट्रेस है, हमें अनसर्टिनिटी कितनी ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ अस आर केयर गिवर्स, राइट, एंड वी रियली डोंट नो कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है. तो हम काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में तो ये बोलते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं, सिर्फ सर में दर्द हो रहा है. तो कब हमारे लिए अलार्मिंग हो जाती है ये चीज़? कब हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए कि अब ये यू नो सदफ हैज़ बीन स्ट्रेस्ड फॉर सो लॉन्ग दैट आई थिंक नाउ शी नीड्स हेल्प? कब पता चलता है हमें? Over time, stress response की दो चीज़ें होती हैं when the cycle is incomplete. Okay. What that means is yes, you have to notice your heart rate, your pulse, your breathing. At your 20s, your bodies are very adaptable. You can ignore a headache, you keep pushing through. आपको करना पड़ता है काम. लेकिन जहाँ आपकी health issues शुरू हो गए, such as insulin resistance, pre-diabetes, those are your markers. Inflammation coming up, or you can't sleep at night, or you're having a lot of overlooping thoughts. Those are signals कि something is incomplete. Can I notice कि मेरा heart rate क्या है, my pulse rate क्या है? Can I start there and go and notice, am I still activated or am I actually resting but I'm not resting? Not resting. वैसे कितनी ब्यूटीफुल चीज़ आपने बताई है कि बेसिकली बॉडी आपको सिग्नल करती है. तो बॉडी आपको इनकन्वीनियंस नहीं कर रही. फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे फ्लू हुआ था एंड वी वर टॉकिंग एंड वी वर अलाइनिंग द शो एज वेल एंड यू केप्ट विशिंग मी रिकवरी, बट इन रियलिटी सदफ आई हैड बर्न्ड माई सेल्फ आउट, राइट. तो उसमें हुआ ये कि मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, बॉडी शट डाउन कर गई, and it wasn't letting me perform. It wasn't letting me work. तो हमारी बॉडी को क्या हमेशा पता होता है? Your body, I think we're missing a huge thing. The gap is हमारा nervous system, हमारी engine को हमने नहीं समझा है. Your body said, this virus या जो भी था, I need to protect you, वो अपना mechanism कर रहा था. But what that means is all the energy you needed to inside take care of your organs, clear the virus, and take, guess what? Rest. So sometimes the body will have to go into a collapse and shut down. Not to punish you, but not to punish you. But because they're saying, you know what, you're going to essentially, हम science में कहते हैं, you will not be alive. So shutdown has a purpose. Every time आप किसी stress या trauma से गुजरते हैं, and you end up like if somebody dies, आप grief में you go limp, right? And you're limp and you cannot move in days. We, with our methodology, say please do not shake and excite the person. The body will thaw out. वो unfreeze होगी क्योंकि उस जिस्म में energy zero है. It's just healing. अंदरूनी healing होगी, energy capacity और ये कितना होता है कुछ लोगों को तो
लॉस के बाद ऐसे फीलिंग होती है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, और यू नो वो ग्रीफ आपकी बॉडी में सालों साल तक रहता है। तभी कहते हैं कि इवन इफ यू हैड अ लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, तो अपने आप को आप एटलीस्ट 5-6 साल दें टू रियली गेट ओवर दैट प्रोसेस एज वेल, बिकॉज द बॉडी नोज, राइट, द बॉडी ऑलवेज नोज। अच्छा, क्या हर कोई सेम तरीके से स्ट्रेस और ट्रॉमा फील करता है, या हमारे नर्वस सिस्टम्स अलग होते हैं? एवरीबॉडी की गाड़ी अलग है। हाँ, सुजुकी भी जो अलग सबकी है वो भी अलग है, बट नर्वस सिस्टम्स आर डिफरेंट। एंड आई फील वी लुक एट ईच अदर्स ह्यूमंस एज ये हमारे में कॉमन है, ये खानदानी ट्रेट है, दैट नीड्स टू आल्सो बी अंडरस्टूड। अ मदर एंड अ डॉटर, अ फादर एंड अ सन, सबके नर्वस सिस्टम्स अलग है। हाउ दे प्रोसेस स्टिम्युलस, डांट, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, वो गुजर जाएगा ज़िंदगी से। किसी को एक छोटी सी चीज़ भी लगे, वो बंदा ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम का तरीका प्रोसेसिंग अलग होता है। इट्स नॉट द पर्सन हिमसेल्फ। दिस इज सो ट्रू। अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ सदफ, जैसा लेट्स से अगर मेरे डैड मुझे डांटेंगे तो मेरा एक बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, जब मेरी बहन को डांटेंगे तो बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा। और हमारे नर्वस सिस्टम भी इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो काफ़ी दफ़ा एक घर में 2 सिबलिंग्स भी अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। तो यू नो आई थिंक दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा, अब पाकिस्तान में आप ख़ास किस चीज़ में अवेयरनेस करना चाह रही हो? हाउ आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल? आई लव द यूज़ ऑफ द वर्ड सेफ्टी. It makes me feel safe even as I say it. So tell us about it. There's an essential safety protocol जो डॉक्टर एमी ने हमें सिखाया है, and after learning about it, I realized and it has 3 steps. Safety is a felt inner experience, means working with the nervous system. अगर उसको हम माइक्रो डोजेस ऑफ सेफ्टी दे, बिकॉज जो एक नर्व आपकी बिगेस्ट नर्व, द सिग्नलिंग बॉडी सिग्नलिंग की आपकी बॉडी से माइंड में जा रहा है, माइंड में बॉडी नहीं जा रहा है। So we've misinterpreted it, and there's safety and support means the tools, and then you look for expansion in life. Usually therapy and healing, by and large, through no fault, people are looking for tools and they're looking for let me grow in life. If we miss the safety protocol, short term हो जाता है। Short term. अच्छा, तो सदफ हम लोग ये सेफ्टी लोगों को, ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेफ्टी क्या है? हम जब सेफ्टी बोलते हैं, सेफ्टी, हाउ डू आई फील सेफ इन माई बॉडी, ये क्या है? So I can ask you a question. अभी आप ये शो कर रही हैं, so if I can use you. Yeah, sure. We're doing the show and we have a performance. We're very performing together. What signals give away to you in your body, not environment? How do you know you're safe in your body? I know because I do this every day. मेरा एक clockwork जैसा rhythm बना हुआ है, ये सारे मेरे अपने लोग हैं, I'm very comfortable with them, so I'm feeling safe right now. But if I do get a guest who triggers me in some way, by that it means कि मुझे लगे कि it's going to be a hard cookie to crack or hard cookie to interview, then हाँ, मेरी breathing थोड़ी shallow हो जाएगी, मेरे shoulders शायद थोड़े ऊपर हो जाएं, या मेरी jaw थोड़ी tight हो जाएगी. Yeah. There you go. Yeah. That was it. Is if we start paying attention, नहीं, अगर हम notice कर लें, and I've heard people say हर second हम notice करें, ऐसे नहीं, जब आपको activation हो रहा हो, notice where you're tight. अच्छा, I think सबसे पहला तरीका for me is मेरी breathing shallow हो जाती है, मैं एकदम से relax, and then जब मैं घर जाती हूँ and when I exhale, मुझे उस वक्त realize होता है कि यार आज का शो कितना stressful था। घर जाके पता चलेगा, कभी इधर नहीं होगा। यहाँ पे तो मैं भाग दौड़ के जल्दी से निकल गई, घर चली गई, and then I know. अच्छा, so can you tell our audience एक अच्छी सी एक्सरसाइज जो अभी सोफे पे बैठ के कितने लोग शो देख रहे हो, जो वो कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को सही करें? लेट्स से मियाँ बीवी हैं, लड़ाई हो गई, बीवी जो आगे से जवाब नहीं देना चाह रही है बिकॉज शी नोज के हस्बैंड इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अबाउट द फाइनेंसेस, तो वो क्या करें? एक बहुत there are many and I know कि शायद it might not land because everybody is looking, but let's try this together with the best of our abilities, knowing कि कोई perfection नहीं है, बस हम we are going to play with noticing and touch, because touch and noticing is what the nervous system does. So I'm going to invite you कि थोड़ा सा अपना ये हाथ, अपना ये जो beautiful दिमाग है ना, जो हमें थकाता है और दिमाग ख़राब करता है, we can even ask people in the
सिटिंग है, ज़रा सा यहाँ टच करे, अ टच दैट सूट्स यू। ऑडियंस आप लोग भी हमारे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू मस्ट डू इट, ट्राई इट, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेट्स सी इफ इट मेक्स यू फील बेटर। एंड ये जो हाथ है जहाँ से वो कनेक्टर वेगस नर्व है, प्लीज प्लेस इट जस्ट एट द बॉटम ऑफ योर नेक। नाउ just in silence, just play around, and I want you to know Let me do कि it. can you notice कि आपका just touch, do you notice a sensation आपका neck पे? Just take your focus I to your feel- neck. I feel calm because अभी blow dry भी कराया है तो बालों के बाद I feel calm, yeah. So wiggle your fingers there. और अगर कपल में या जो भी दोस्तों में लड़ाई है, just notice गले में क्या हो रहा है.